Hello everyone, welcome to Ovation Institute and I welcome you all to our YouTube channel. Namaste to everyone, and I am Pallavi Das, your friend and guide. And today I am again here after the holidays, after the Puja holidays, and after a long time I am again here with top 10 vocabulary words. That is daily dose of vocabulary based on the Hindu editorials. Right. So let me first tell you my experience that why I took a leave and you could not see me for a long time because my father was diagnosed with COVID and he was COVID positive. First of all, we tried to keep him in the home, in our home, but his condition was deteriorating, and that is why we had to shift him to the hospital, COVID hospital. And right now, we are also in quarantine, and we cannot go out of our homes. Of our home after at least for 14 days, for 14 days, and afterwards if we see any symptoms, then we'll have to look further, and we'll have to go further with we have already taken precautions. So there are some medicines. If you are not a COVID-19 patient, if you think that you have come across any COVID-19 patient, or you have touched any surface where you suspect that you a COVID-19 patient, coronavirus patient, COVID positive patient may have touched that surface, then if you are suspecting this kind of a thing, then you can go for precautions. Ask your doctor, talk to your doctor. You can take precautionary medicines, and that can help you to get rid of, so that COVID doesn't attack you. So it will give you precautions, right? So we are taking already taking precautions. And तो मैं कुछ दिन पहले आपसे बोल रही थी, आप सबको बता रही थी कि ऐसा एक दिन आएगा जब हर एक के घर में एक कोविड-19 वाला पेशेंट रहेगा, या फिर सबको एक बार कोविड हो चुका होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा ही कुछ अभी होने वाला है, तो सब सोच रहे हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है अभी। इफ़ यू अगर आप देखो कि हर एक के घर में एक ना एक पेशेंट है, या फिर एक ना एक इंसान को कभी तो हो गया होगा कोविड पॉजिटिव। ओके, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। हमारे सेशन को आज हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो पूजा हॉलीडेज आर ओवर, वी विल हैव टू गेट बैक टू आवर एग्जामिनेशंस। तो दिस ईयर का पूजा भी इतना बड़ा, इतना ग्रैंड नहीं हुआ। हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं निकले, हम लोग तो बिल्कुल नहीं निकल पाए, राइट, बिकॉज ऑफ दिस मैसेकर। सो आप लोग भी शायद मेरे ख्याल से पूजा पंडाल हॉपिंग नहीं गए होंगे। यू ऑल आर सिक्योर, यू ऑल आर सेफ इन योर होम्स। सो we'll have to go get back to studies. Pujas are over, okay? So studies पे फिर से आना पड़ेगा. Puja holidays are over, and let us start our day with a motivational line. Let us see what is our motivational line for today, right? And उसके पहले मैं good morning सबको बोल देती हूँ. A very good morning to you, all of you. All right. So let us see what is our motivational line for today. So our motivational line is, today's motivational line is, pearls don't lie on the seashore. If you want one, you must dive for it. So this is a very good motivational line. What is the meaning of this line? कि pearls जो है, pearls मतलब मोती, okay, in Hindi. In Bengali it's mukto, okay. So मोती क्या आपको सी शोर में, मतलब सी बीच में आपको फैलाए हुए, आपको वहाँ पे पड़े हुए मिलते हैं कभी नहीं। अगर आपको मोती चाहिए, अगर आपको पर्ल्स चाहिए, तो आपको डाइव करना पड़ेगा सी के अंदर, ओके। तो मतलब समंदर के अंदर आपको डाइव करके बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीप इनटू द सी, एंड देन यू कैन फाइंड द प्रेशियस पर्ल्स, राइट? तो पर्ल्स इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने कॉस्टली क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर, दीज आर वेरी रेयर थिंग्स। तो ये इसका कोई मतलब पेड़ नहीं होता कि पर्ल्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, या फिर ऐसे रास्ते में ये सब नहीं मिलते हैं। सो दैट इज़ वॉट, इसको अगर आप पर्सोनिफाई करोगे, इस सेंटेंस को अगर आप इस सेंटेंस को मोटिवेशनल के तरह, मोटिवेशनल लाइन के तरह लोगे, मोटिवेशन
सोचोगे इस लाइन को तो क्या है इसमें से हमें क्या लेना है, इसमें से हमें यही लेना है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए, अगर हमें किसी लेवल तक पहुंचना है, अगर हमें हमें किसी जगह तक पहुंचना है, कि कोई हमें पोस्ट चाहिए या फिर कोई एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, देन वी विल हैव टू डू हार्ड वर्क। तो वो ऐसे ही हमें घर बैठे कोई हमें आके हम बैठे हुए हैं ऐसे चिल कर रहे हैं तो कोई आके बोलने नहीं वाला है कि भाई आपको सरकारी नौकरी मिल चुका है, आप आइए हमारे ऑफिस, आप स्टार्ट कीजिए अपना काम। ऐसा तो नहीं होने वाला, ये सपनों में होता है। ओके, एंड लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम, सो वी विल हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क टू गेट that position or to get that dream job that we think of, right? So that is our motivational line for today. We will start the session obviously, हम लोग बहुत सारे नए words आज सीखने वाले हैं। let us see हम लोगों ने कितने 10 नए वर्ड्स जो कि वोकेबुलरी हमने हिंदू वोकेबुलरी से हिंदू से निकाला है, द हिंदू से निकाला है, देख लेते हैं वो सारे वर्ड्स क्या क्या है। पहला वर्ड जो है हमारा आज का पहला वर्ड है, राइट तो हमारा आज का पहला वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड, सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज alright, so today's first word is decency. okay, decency हमारा पहला वर्ड है आज का। ऑलराइट, सो डिसेंसी हमारा आज का पहला वर्ड है। डिसेंसी एक नाउन है, डिसेंसी एक नाउन है जिसका मीनिंग हिंदी में आप कह सकते हैं शिष्टता। ओके, शिष्टता आप हिंदी में इसको कह सकते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से बिहेवियर दैट कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, द एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग प्रॉपर। ओके, द एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग प्रॉपर, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं मोरालिटी, इंटेग्रिटी, प्रोप्रिएटी, ओके, डेकोरम। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिसकर्टेसी, इम्प्रोप्रिएटी या फिर इम्पोलाइटनेस। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? व्हेन जीना बिकेम हुक्ड ऑन ड्रग्स, शी लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ डिसेंसी एंड स्टार्टेड टू स्टील फ्रॉम हर ओन फैमिली। तो जब जीना शी बिकेम हुक्ड ऑन ड्रग्स, मतलब जब वो ड्रग्स में एडिक्टेड हो चुकी थी, शी लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ डिसेंसी, तो उसने डिसेंसी का सारा सेंस वो खो चुकी थी। मतलब ऐसा कोई सेंस जिस पे आप अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा बात करते हो, अच्छा सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट बिहेवियर। ओके, फ्रॉम देयर डिसेंसी केम। ओके, डिसेंसी एक नाउन है। Now she lost all sense of decency and started to steal from her own family. तो ड्रग्स में एडिक्टेड हो जाने की वजह से उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने अपने खुद के फैमिली से उसने स्टील करना शुरू कर दिया, मतलब वो आजकल चीज़ें चोरी करने लगी थी। ऑलराइट, ओके, let us see what is our next word. Our next word is exhortation. Okay, our next word is exhortation. Exhortation एक noun है जिसका meaning होता है प्रबोधन। Okay, exhortation एक noun है जिसका meaning होता है प्रबोधन। Or you can say in English, what is the meaning in English? The meaning is, yes, so in English, to strongly urge someone to do something. तो आप किसी को अर्ज कर रहे हो कुछ करने के लिए, मतलब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि ऐसा कर लो भाई, ये बहुत अच्छा काम है, ये कर लो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉर्टेशन। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं परसुएशन, एनकरेजमेंट, अर्जिंग। Okay, these can be the synonyms. Antonyms can be dissuasion, arbitration. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Because I exhort my students to do well and provide them with all the necessary resources, they usually perform nicely in my classes.
तो क्या करती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जॉर्ट करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को अर्ज करती हूँ, मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ अच्छा काम करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट करने के लिए। तो मैं एग्जॉर्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू डू वेल, अच्छा करने के लिए, एंड प्रोवाइड देम विथ ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज। और मैं अपने स्टूडेंट्स को सारे नेसेसरी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। रिसोर्सेज मतलब स्टडी मटेरियल्स हो या कुछ भी हो, उनके पढ़ाई की चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। इसीलिए दे यूजुअली परफॉर्म नाइसली इन माई क्लासेस। तो इसीलिए मेरे क्लासेस में ये लोग नाइसली परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट करते हैं, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कंटेम्पोररी। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंटेम्पोररी। लेट्स सी, कंटेम्पोररी एक एडजेक्टिव है। कंटेम्पोररी इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग हिंदी में होता है समकालीन। ओके, कंटेम्पोररी जो एक एडजेक्टिव है इसका हिंदी में मीनिंग होता है समकालीन। In English you can say it's quite recent. Okay, in English you can say it is quite recent. Synonyms इसके हो सकते हैं current, modern, present, topical, ये सारे synonyms हो सकते हैं। Antonyms हो सकते हैं old, vintage, traditional, dated, archaic, ये सारे antonyms हो सकते हैं। How to use it in a sentence, इसको sentence में कैसे use करें? The art critic who was used to reviewing pieces from the 1930s and 1940s did not have anything positive to say about contemporary art. तो वो जो आर्ट क्रिटिक जो आए थे, आर्ट क्रिटिक कौन होते हैं? मतलब आर्टिस्ट जो लोग क्रिटिक्स के रोल प्ले करते हैं, मतलब बेसिकली अ जज। ओके, जो जज करने आते हैं, मतलब आपके आर्ट में क्या फॉल्ट है, कितना अच्छा हो सकता था या फिर कितना अच्छा बना है, इसको कैसे रैंक किया जाए, दे आर कॉल्ड आर्ट क्रिटिक्स। ओके, सिनेमा में भी क्रिटिक्स होते हैं, आर्ट में भी क्रिटिक्स होते हैं। सो तो आर्ट क्रिटिक वहाँ पे आए थे रिव्यू करने पीसेस को, मतलब आर्ट के पीसेस को रिव्यू करने जो आए थे from the 1930s and 1940s did not have anything positive to say about contemporary art. तो वो लोग जो आए थे वो 1930s एंड 1940s के पीसेस को वो लोग यूज टू है रिव्यू करने के लिए। मतलब वो लोग 1930s 1940s के आर्ट पीसेस को रिव्यू करते थे। ओके, मतलब 1930s 1940s में जो आर्टिस्ट लोगों ने जो आर्ट फॉर्म्स जो बनाया था, वो आर्ट क्रिटिक्स उन आर्ट फॉर्म्स को, मतलब 1930s और 40s के आर्ट को देख कर उनका वो देखते थे। ओके, बट कॉन्टेम्पररी आर्ट के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए कुछ पॉजिटिव वो लोग कॉन्टेम्पररी आर्ट के बारे में बोल नहीं सके। सो व्हाट इज कॉन्टेम्पररी आर्ट? कॉन्टेम्पररी आर्ट का मतलब होता है जो रीसेंट का आर्ट है। ओके, मॉडर्न टाइम्स में जो आर्ट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्पररी आर्ट। Let us see what is next. So we have next an idiom. तो this is a food idiom. ये एक food idiom है. What is it? Fine kettle of fish. Okay. Fine kettle of fish ये एक food idiom है. इसका meaning क्या होता है? A mess or difficult situation. तो एक मेस हो जाना मतलब सब कुछ हौच-पौच हो गया है या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दैट इज़ कॉल्ड अ फाइन केटल ऑफ फिश। अब इसको यूज़ कैसे करें सेंटेंस में, ये देख लेते हैं। दिस इज़ अ फाइन केटल ऑफ फिश। ओके, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आई थॉट आई पेड द इलेक्ट्रिक बिल बट नाउ द पावर हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ। मुझे लगा था कि मैंने इस महीने का इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया है, लेकिन पावर उन लोगों ने टर्न ऑफ कर दिया, लेकिन पावर कट हो गया है। इस वजह से मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैंने बिल शायद नहीं पे किया। राइट, लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमारा पहला, व्हाट इज़ इट? फाइन केटल ऑफ फिश। तो ये एक फूड इडियम है, इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोगों ने देखा। Let us see what is our next vocabulary word. Our next word is levitation. Okay, levitation एक noun है जिसका meaning होता है उत्तोलन। Okay, levitation एक noun है जिसका meaning होता है उत्तोलन। In English you can say the action of rising or causing something to rise and hover in the air. तो हवा में कोई चीज़ उड़ाने का मीनिंग होता है लेविटेशन, टिपिकली बाय मीन्स ऑफ सपोज्ड मैजिकल पावर्स। मतलब अद्भुत पावर्स यूज़ करके कोई चीज़ को हवा में उड़ाना, इसका मीनिंग होता है लेविटेशन।
सिनोनिम्स हो सकते हैं लिफ्ट, राइज, अपसर्ज, एसेंट, एसेंशन, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकता है ascension. How to use it in a sentence? The magician was able to make himself levitate 3 inches off the ground in a trick that stunned the crowd. तो मैजिशियन ने क्या किया? मैजिशियन अपने आप को लेविटेट कर लिया 3 इंचेस ऑफ द ग्राउंड. ओके, तो ज़मीन से 3 इंच जो मैजिशियन था वो हवा में उड़ रहा था. ओके, 3 इंच ऊपर ज़मीन से. नाउ दिस ट्रिक स्टन्ड द क्राउड, मतलब क्राउड चौंक गई थी ये ट्रिक देखकर, सरप्राइज हो गई थी. राइट, दैट इज कॉल्ड लेविटेशन. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइंट. ओके, क्वाइंट जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विचित्र. क्वाइंट मत का मीनिंग होता है विचित्र. इन इंग्लिश यू कैन से अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड. ओके, मतलब जैसे कि राजा महाराजा के दिनों में बहुत पुराने जो एंटीक पीसेस होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते थे. ओके, अनयूजुअल मतलब हमेशा ऐसे पीसेस हमें देखने को मिलते हैं नहीं. और ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने का, दैट इज़ कॉल्ड क्वाइंट. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ऑड, स्ट्रेंज, इसेंट्रिक, अनयूजुअल, पिक्यूलियर, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं ऑर्डिनरी, नॉर्मल, कॉमन, यूजुअल, ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? एज सून एज वी एंटर्ड द क्वाइंट होम वी नोटिस्ड इट वॉज फिल्ड विथ चार्मिंग एंटिक्स. तो जैसे ही हम लोग इस क्वाइंट घर में हम लोग ने एंटर किया, हम लोग घुसे, हम लोगों ने नोटिस किया, वी नोटिस्ड इट वॉज फिल्ड विथ चार्मिंग एंटिक्स. तो वहाँ पे बहुत सारे सुंदर एंटिक पीसेस भर्ती पड़े थे उस क्वाइंट घर में. ओके, दैट इज कॉल्ड क्वाइंट. Let us see our next word. Our next word is downturn. ओके, डाउनटर्न क्या है? डाउनटर्न एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है मोर. इन इंग्लिश यू कैन से अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक, बिजनेस और अदर एक्टिविटी. बेसिकली अ डिक्लाइन. ओके, और यू कैन से अ डाउनफॉल इवन. ओके, डाउनफॉल का या फिर डाउनटर्न का मीनिंग होता है नीचे आ जाना या फिर कंडीशन थोड़ा डिटोरिएट करना. दैट इज कॉल्ड अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक और बिजनेस. बिजनेस में डिक्लाइन आता है, दैट इज कॉल्ड डाउनटर्न. सिनोनिम्स हो सकते हैं डिक्लाइन, स्लम्प, रिसेशन, ड्रॉप, स्लो डाउन. एंटोनिम्स हो सकता है अपसर्ज, रिकवरी, इम्प्रूवमेंट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? Business owners are dealing with the downturn by offering discounts and deals as a way to fight the sales decline. तो सेल्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका था, इस वजह से बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे थे? बिजनेस ओनर्स को डील करना पड़ रहा था एक बहुत बड़ा डाउनटर्न, मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था, पैसे में बहुत मतलब कमी हो रहा था. दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ओनर्स को थोड़ा लॉस से सफ़र करना पड़ रहा था. बाय ऑफरिंग, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे? डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे एंड डील्स ऑफर कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको सेल्स डिक्लाइन के साथ फाइट करना था. राइट, सो दिस इज डाउनटर्न. Let us see what is next. Next is you have another idiomatic expression. तो आप आज का second idiomatic expression क्या है? Packed in like sardines. तो ये फिर से एक food idiom है. Food idiom guys, this is very important. Food idioms is a very important part. यहाँ से generally बहुत से idioms आते हैं exam में. Food idioms is a very important part of idiomatic expressions. Okay, so you should not skip any of the food idioms you come across. Right, so what is it? Packed in like sardines. So sardines, basically sardines is a kind of fish. तो बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस को एक जगह पे रखते हैं तो वो पैक्ड एक जगह पैक हो जाते हैं. ओके, मतलब बहुत सारे फिश एक साथ रहते हैं. sardines is a typical name of a fish. Okay, so packed in like sardines ये एक idiomatic expression है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है crowded, मतलब बहुत भीड़. ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? द वेन्यू वॉज सो क्राउडेड वी वर ऑल पैक्ड इन लाइक सर्डाइंस एंड कुडंट मूव. तो वेन्यू जो था, मतलब जहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था या फिर कोई कुछ भी हो रहा था, ओके, कॉन्टेस्ट, तो वहाँ पे इतना भीड़ था कि हम लोग वी वर
पैक्ड इन लाइक सर्डाइंस, हम लोग पूरे क्राउड में फंस गए थे, एंड वी कुडंट मूव, हम लोग हिल भी नहीं पा रहे थे. सो दिस इज द यूज ऑफ पैक्ड इन लाइक सर्डाइंस, राइट. Let us see what is our next word. Our next word is retaliation. Okay, retaliation एक noun है. retaliation का meaning होता है प्रतिशोध. So retaliation means प्रतिशोध. Okay, or you can say in English a counter attack. retaliation का meaning basically प्रतिशोध नहीं होता है. If you attack someone and a counter attack comes against that, that is called a retaliation. Okay, the action of harming someone in response to something equally hurtful. तो मैंने एक घुसा मारा, तुमने भी मुझे एक घुसा मार दिया. That is called retaliation. Okay, that means counter attack. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिवेंज, वेंजियंस या फिर रिप्राइजल. एंटोनिम्स हो सकते हैं मर्सी, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस. ऑल्दो ही न्यू दैट रिटालिएशन वुड ओनली लीड टू मोर पेन, द विक्टिम प्लॉटेड अ रिवेंज अटैक ऑन द थीव्स दैट ब्रोक इनटू हिज स्टोर. तो ऑल्दो ही न्यू, ऑल्दो उसे पता था कि रिटेलिएशन वुड ओनली लीड टू मोर पेन, कि रिवेंज लेना अच्छी बात नहीं होती है. ओके, लेकिन वो जो विक्टिम था, प्लॉटेड अ रिवेंज अटैक, विक्टिम ने प्लॉट किया कि उसे एक रिवेंज अटैक करना है उन चोरों को जिन्होंने उसके स्टोर में आके चोरी किया था. तो उन चोरों के अगेंस्ट वो एक रिवेंज लेने वाला है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड रिटेलिएशन. Let us see our next word. Our next word is slump. S-L-U-M-P, slump. Slump एक verb है जिसका meaning होता है मंडी. और you can say an undergo a sudden, severe or prolonged fall in price, value or amount. So that is called slump. तो सीवियर एक प्रोलॉन्ग्ड फॉल मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाना, दाम गिर जाना या फिर वैल्यू गिर जाना या फिर अमाउंट गिर जाना. सो दैट इज कॉल्ड स्लम्प. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप. ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं सर्ज, राइज, एसेंट. ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें. सेल्स ऑफ द फोन बिगैन टू स्लम्प आफ्टर सेवरल कॉट ऑन फायर एंड बर्न्ट देयर ओनर्स. तो ये जो फ़ोन का सेल है वो बहुत कम हो गया था मतलब ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया. क्यों? क्योंकि बिगैन टू स्लम्प मतलब कम होना स्टार्ट हो गया, नीचे जाना स्टार्ट हो गया. सेवरल कॉट ऑन फायर, तो वो फ़ोन क्या होता था, उसका बैटरी में कुछ प्रॉब्लम था शायद. सो इट कॉट ऑन फायर एंड बर्न्ट देयर ओनर्स. तो बहुत सारे इस फ़ोन के ओनर्स, इन लोगों का डेथ हो चुका था इस वजह से, राइट. सो व्हाट इज सो this is slump. All right, let us see our next word. Our next word is extradite. ओके, एक्स्ट्राडाइट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अपराधी देना. ओके, अपराधी देना. और यू कैन से देना मीन्स हैंड ओवर करना. ओके, अपराधी को देंगे कैसे, हैंड ओवर करना. सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राडाइट. एक्स्ट्राडाइट मतलब हैंड ओवर. किसको हैंड ओवर करे. अ पर्सन अक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम. अगर कोई पर्सन कोई क्राइम के किसी ने वो अक्यूज्ड है मतलब उसने कोई क्राइम किया है या फिर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है कि उसने क्राइम कर सकता है वो. ओके, दैट ही इज़ द अक्यूज्ड पर्सन. ओके, सो उसको हैंड ओवर करेंगे टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉरेन स्टेट इन विच द क्राइम वॉज कमिटेड. तो हमारे स्टेट में एक क्रिमिनल है, उसको किसी उसके जुरिस्डिक्शन में मतलब उसके फॉरेन स्टेट में, बाहर के किसी स्टेट में हम उसको हैंड ओवर करेंगे उस जुरिस्डिक्शन वाले स्टेट में जहाँ पे वो क्राइम कमिटेड हुआ था, राइट. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राडाइट. सिनोनिम्स हो सकते हैं डिलीवर, डिपोर्ट, सरेंडर. एंटोनिम्स हो सकते हैं शेल्टर, डिस्चार्ज, प्रोटेक्ट. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस. Because so many countries wanted to prosecute the woman, it was difficult to decide whether to extradite her. क्योंकि बहुत सारे देश इस महिला को प्रोसिक्यूट करना चाहते थे, ये बहुत डिफ़िकल्ट था टू डिसाइड व्हेट टू एक्स्ट्राडाइट हर मतलब उसको कहाँ भेजा जाए, उसको कहाँ हैंड ओवर किया जाए, ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, राइट. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. This is our last vocab for today. What is it? Our last vocab is orchestrate. Orchestrate एक verb है जिसका meaning होता है कि arrange or score music for orchestral performance.
तो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ऑर्केस्ट्रा एक परफॉर्मेंस है। तो ऑर्केस्ट्रा वाज वेरी फेमस प्रीवियसली, बट दीज डेज ऑर्केस्ट्रा अभी ज़्यादा आता नहीं है। ओके, टू ऑर्गेनाइज और प्लान ऑल ऑफ द डिटेल्स ऑफ एन इवेंट। ऑर्केस्ट्रेट इसको भी कहते हैं, कोई म्यूज़िक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, या फिर आप कोई कुछ चीज़ प्लान किए हैं आपने, या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनाइज किया है आपने, इसको भी ऑर्केस्ट्रेट कहा जा सकता है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अरेंज, हार्मोनाइज, ऑर्गेनाइज, स्कोर, ब्लेंड। एंटोनिम्स हो सकते हैं इग्नोर, डिस्टर्ब, डिसरप्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करें? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे फ्रॉम द ब्राइड एंड ग्रूम, एन इवेंट प्लानर वॉज हायर्ड टू ऑर्केस्ट्रेट द वेडिंग। तो वेडिंग में मतलब शादी में तो वेडिंग ब्राइड और ग्रूम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते पूरे शादी का, तो इसीलिए क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों से हटाने के लिए एक इवेंट प्लानर को हायर किया गया था टू ऑर्केस्ट्रेट द वेडिंग, वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो ऑर्केस्ट्रेट का सिनोनिम ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। मतलब ऑर्केस्ट्रेट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, music arrangement, but it is also used for any kind of organization, right? So this was orchestrate. तो हमारा आज का लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो ये फिर से एक फूड इडियम है। हैव बिगर फिश टू फ्राई का मीनिंग क्या होता है? हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, कि मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए है, ये छोटे छोटे काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दैट इज कॉल्ड हैव बिगर फिश टू फ्राई। So how to use it in a sentence? I can't worry about her problems since I have bigger fish to fry. तो मैं उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना मैं वरी नहीं कर सकता, मैं उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत बड़े बड़े चिंता है करने के लिए, राइट? तो ये सारे छोटे छोटे चिंता मैं नहीं कर सकता, राइट? सो दिस इज़ योर top 10 vocabulary words for today and your 3 idiomatic expressions. So today we did 4 idioms, and yes, we will be doing different kinds of idioms and different kinds of words that will be taken from the Hindu editorials. So vocabularies are an indispensable portion, indispensable part of your government exam preparation. So don't forget to make a good vocabulary, good stock of vocabulary words, which is not only going to be very useful for you, very helpful for you, but it is also going to help you throughout your life. If you get that position, अगर आपको वो position मिल भी जाए, तो उस पोजीशन को टिका के रखने के लिए, उस पोजीशन को होल्ड करके रखने के लिए भी आपको वोकैबुलरी का स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा. So that is why vocabularies are an indispensable portion for any of the government examinations you are preparing for. So I hope you like the session. If you like the session, do like our videos, do like this video, click on the like icon, and yes, share it with your friends and relatives, so that they also can be very helpful with these videos. And do comment in our videos. Your comments are very useful for us, and very it keeps us motivated. And do comment in our videos. And yes, if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon so that you get all the recent updates. So see you next day. Till then, take care. Goodbye.